Hello everyone. Today in this tutorial we are going to learn how to design a primer. प्राइमर जो है एक पीसीआर के रेसिपी में एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे रेप्लिकेशन में प्राइमर के बगैर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो सकती, वैसे इन विट्रो केसेस में व्हेन वी नीड टू रेप्लिकेट और एम्पलीफाई आवर डीएनए और cDNA or something else, we want to amplify that. For that purpose, primer are the essential components. So in this video lecture, you are going to learn about how to design a primer for any PCR activity, and this will be the basis for your learning in the future. Okay. First of all, we need a sequence for which primer is need to be designed. So we will proceed toward Ensemble. Ensemble is a genome browser. We can access NCBI and anything else, but Ensemble is one of the most likable from my side. So we'll proceed toward Ensemble genome browser. For example, we want to, for example, we want to design a primer for the species human. And for that purpose, we will use the BRCA1 gene. Okay. For the first, we have to assess the sequence before we can design primer. Okay. This is our gene, BRCA1. Okay. How to assess the sequence, we are going to discuss in that today. We need to first assess the transcript table. I'm going to use the transcript which has the most nucleotide sequence or base pair sequence with the highest number of amino acids coded for it. So I'm going to assess the second sequence for that. Okay, let's move on. You can see that I have assessed that, but for that we have to click on the exons and sequence to see the our exonic sequence. Okay, this is the sequence we got, and keep in mind the small letters represents the intronic region, while the large capital letters represents the exonic sequence. Okay, you can see that this is exon 1, this is exon 2. So in between them is called intron 1 and 2. But for primer designing, it's better to see all the intron and hide rest of the columns. So I'm hiding rest of the columns except sequence. That should be kept. Okay. So this is your exonic sequence. And now we have to assess the intronic sequence. For this, you have to configure this page. After configuring this page, you need to assess the full intronic sequence that I have clicked. Okay, save. Now you can see this is the exonic sequence. Okay, the blue ones in the capital letters are exons, while while the surrounding region is intron. We are designing primer this time primer for basically what we call Sanger sequencing. In case of Sanger sequencing, if we are studying only the coding region, we need to assess, we need to design a primer in such a way that our full exon is covered within the sequencing region. And secondly, मतलब ये बात सीधी सीधी ये है कि आपका इंट्रॉनिक रीजन मौजूद है, ये भी आपके इंट्रॉनिक रीजन, ये भी इंट्रॉनिक, हमने पूरे एक्सोनिक रीजन को लाना है। एक्सोनिक रीजन जो है कोडिंग रीजन है। फॉर दैट पर्पस इट्स इजी टू क्या कहते हैं कि हम थोड़ा सा रीजन ऊपर से लेंगे, थोड़ा सा रीजन नीचे से लेंगे, ताकि हमारे प्राइमर इधर से पिक हो और ये पूरा सीक्वेंस में है। जब भी सेंगर सीक्वेंसिंग होती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ जरा एनोटेशन करके, ठीक है, ड्रॉ। ओके, ये आपका एक्सॉन है, ये आपका इंट्रॉन है, ठीक है। सीक्वेंसिंग होती है तो हमें सीक्वेंसिंग में ये सीक्वेंस चाहिए पूरा पूरा, क्योंकि हम जो डिजीज के हवाले से स्टडी कर रहे हैं वो इस एक्सॉन में मौजूद है। तो इसका तरीकाकार क्या होगा कि आपको पता है जब सेंगर सीक्वेंसिंग होती है तो उधर भी प्राइमर बाइंड करता है। जब पहले प्राइमर सीक्वेंसिंग स्टार्ट करता है
तो वो चंद एक बेसिस जो होती है ना, वो प्रॉपर सीक्वेंस नहीं कर पाता। तो प्राइमर वाले जो है और उसके थोड़ा सा आगे रीजन सही सीक्वेंस नहीं होता। तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपना प्राइमर इंट्रॉनिक रीजन से लेना चाहिए ताकि ये प्रॉपरली सीक्वेंस हो पाए। आपको ये पता होना चाहिए कि 1000 बेस पेयर तक क्या कहते हैं सेकेंड सीक्वेंसिंग अच्छी कर सकता है। तो हमारे तो ये 200 के करीब भी बेस पेयर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इजी तरीका यही है कि हम यहाँ से लेकर, ठीक है, 1000 बेस पेयर यहाँ तक आ जाएं और ये सारा सीक्वेंस उठा ले और प्राइमरी पहला यहाँ से पिको, सेकंड यहाँ से पिको, तो वो हमारा ठीक प्राइमर होगा। ठीक है। अब इसके लिए इजी तरीका कार ये है कि हम इस सीक्वेंस को लेंगे। अच्छा, प्राइमर डिजाइनिंग के लिए पहली बात तो ये कि हमें प्राइमर स्टैट यूज करना है। क्या यूज करना है? प्राइमर स्टैट। प्राइमर स्टैट यूज करना है। तो पहले तो हम इसको रेज करते हैं और मैं आपको प्राइमर स्टैट में, सॉरी प्राइमर 3 में, प्राइमर 3 यूज करना है। प्राइमर 3 के बाद प्राइमर स्टैट उस चेक करने के लिए प्राइमर वेदर और प्राइमर इज करेक्ट और नॉट। तो हम पहले क्या करेंगे, हम जाएंगे, पहले हम अपना सीक्वेंस कॉपी करेंगे यहाँ से लेकर। हमें याद रखना है कि हमारे एक्सोनिक रीजन से ना हो सीक्वेंस एज अ प्राइमरी पिक हो। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक हमने ले लिया, कंट्रोल सी दबाएंगे। ओके, और हम आए प्राइमर 3 की तरफ। प्राइमर 3, ठीक है, प्राइमर डिजाइनिंग टूल है प्राइमर 3। ठीक है, प्राइमर 3 को क्लिक किया। प्राइमर 3 को क्लिक किया। अच्छा, इसको यहाँ पे डाला। ये देखें कि एक्सोनिक रीजन जो है कैपिटल है और इंट्रोनिक रीजन स्मॉल है। ये देखें, ये सारा हमारे सामने आ गया। कंडीशंस को चेक कर लीजिए क्या ऑप्टिमाइज हैं। जी 18 से 23 ये सारी कंडीशंस ऑप्टिमाइज है। हमें कोशिश करनी है कि हम जो हमारा सीक्वेंस है वो एक्सोनिक वो 200 का है, तो हम 400 से रेफरेंस दे के 400 से बड़ा ही सीक्वेंस पिक करें। हम फिर पिक प्राइमर्स पे दबाएंगे। अब ये हमारा प्राइमर जो है वो बिल्कुल ठीक आया है। कैसे ठीक आया आप बता सकते हैं? ये देखें, ये पहले हमारा एक्सोनिक सीक्वेंस यहाँ है। ठीक है, अब ये प्राइमर स्टैट देखें, ये पहला प्राइमर है। फॉरवर्ड प्राइमर जो है वो एक्सॉन से पहले और काफी कम से कम 50 बेसिस का तो डिफरेंस है। और ये दूसरा रिवर्स प्राइमर भी 50 और बेसिस का डिफरेंट है। तो इसका मतलब हमारा प्राइमर यहाँ से जो पिक हुआ है तो पूरे के पूरे एक्सोनिक रीजन को कवर करे। यहाँ बात तक तो बात ठीक हुई। अब इसको चेक करने के बाद ये प्रॉपरली वर्क करेगा या इसमें कोई ज्यादा बेस पेयरिंग जीसीटी और सारा कंटेंट फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। इसका तरीका कार है, पहले प्राइमर स्टार्ट हो जाना। प्राइमर स्टैट, ये भी बायोइन्फॉर्मेटिक टूल है। अब हम अपने पहले प्राइमर को पिक करके चेक करेंगे। माजरत हूँ कि इंटरनेट थोड़ा स्लो है। अच्छा, हम अपना जो है सीक्वेंस यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, पहले क्लियर कर लें इसको। ठीक है, सबमिट। देखें कि सारे टेस्ट पास हो गए हैं। हमेशा टीएम की वार्निंग आती है 50 ग्रेटर देन 58, बट ये टेस्ट पास हो गया। तो ये इस लिहाज से हमारा ये प्राइमर ठीक है। अब हम रिवर्स प्राइमर को जरा चेक करते हैं क्या वोट सारे टेस्ट पास कर पाता है। आपने याद रखना है कि दोनों प्राइमर का प्राइमर स्टैट पास कराना है, फॉरवर्ड का भी रिवर्स का। फॉरवर्ड तो पास कर गया है, क्या रिवर्स पास करेगा? कंट्रोल सी कॉपी किया हमने, प्राइमर स्टैट डाला और यहाँ पे पेस्ट किया और सबमिट किया। ये देखिए, ये भी पास कर गया, यानी हमारा प्राइमर पेज जो है ठीक है बिल्कुल। तो ये है प्राइमर डिजाइनिंग का तरीकाकार, जो कि इंतहाई आसान है। ठीक है, और उसके अलावा क्या इसने और देखिए इसने और प्राइमर भी प्रपोज किए हैं, बट यहाँ देखें, यहाँ पे ये प्राइमर हमारे टारगेट एक्सोनिक सीक्वेंस के अंदर आ रहा है, तो ये हमारी जरूरत पूरी नहीं करेगा, इस वजह से हमें इसको ठीक कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब
बाकी अगर कोई आपका सवाल है तो आप नीचे छोड़ सकते हैं क्वेश्चन में, और कन्फ्यूजन दूर कर दी जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।